time. I don't think so I have enough time to do internship. I have ample of assignments. Do you know, like, I get every day around 17 to 18 assignments to write, to edit, to do this, to do that, blah, blah, blah. I don't know, so many PPTs and everything. And on top of that, people are telling me that I have to do internship. Do you really think that I can manage? I am really frustrated. I don't know what to do. There's so many things lined up. I have not finished anything. I'll fail in my exam. I have low attendance and I might not get paid for what I was supposed to do internship. I'm seriously stuck and all over the place. I don't know what to do. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Yes, what you saw is a situation of most of my students who are in second year, third year and they are cribbing most of the time कि मैम internship और ये जो college है हमसे manage नहीं हो रहा है, and most of them are like either leaving the internship or getting KTs or some other thing. So I decided कि let's talk about how to manage your internship with your college. So make sure guys that you watch the video till the end because it will surely help you to make a balance between these two. First thing, how badly you want it. ट्रस्ट मी गाइज, यू ऑल्सो नो, अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप उसके लिए टाइम बना लेते हो, बट अगर कोई चीज मजबूरी में कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर बिजी एंड यू हैव एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस. यू डोंट हैव टाइम फॉर इंटर्नशिप एंड असाइनमेंट, बट at the same time you are on your phone most of the time, scrolling the Instagram, putting up reels and stories and roaming around, and at the same time you have all the time to babu shona khana khaya kya, balancing your relationship. So it's just about how badly you want it. Guys, if you want something, if you want to hustle, if you want to learn, if you want to be a part of the organization at your teenage, then you gonna make it happen. At the end, bottom line is the priority, not कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है. टाइम बहुत सबके पास 24 घंटे होते हैं. It's just the priority and how badly you want it. Second point is the nature of work. Guys, I understand अगर आप कोई ऑफलाइन इंटर्नशिप कर रहे हो तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. उसमें थोड़ा जो जगल करना होता है ना, मुश्किल हो जाता है. बट इफ योर नेचर ऑफ वर्क इज ऑनलाइन, एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, देन यू गेट मोर टाइम बिकॉज आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आपका मीटिंग्स एंड वेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है. तो अगर आप ऐसा टाइप ऑफ इंटर्नशिप ढूंढो जो ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, आपका मोस्ट ऑफ द मनी एंड टाइम उसमें ना जाए, then yes, it will definitely give you more time to balance out. अगर वैसा nature of work है और आपको करना भी पड़े, most of the production guys have to do that. So I would say कि जो second shift है आप वो ले लो, और सेकेंड शिफ्ट के बीच में अगर आपको टाइम मिलता है कि ऑनलाइन असाइनमेंट कुछ हो रहा है, कुछ जुगाड़ हो पा रहा है, देन यू कैन बैलेंस इट आउट. सो इफ यू थिंक कि आपका कॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और आपको वो टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, तो डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क अकॉर्डिंगली. जो इंटर्नशिप आपकी है वो आप ट्राई करो कि आपको जो ऑफिस है वो सिर्फ 2 दिन जाना हो, देन येस यू विल हैव अ पीसफुल टाइम कि आप कॉलेज भी कर पाओ एंड एट द सेम टाइम यू आर एबल टू मैनेज योर इंटर्नशिप. थर्ड is the time of internship. अभी अगर आप अपने एग्जाम टाइम पे इंटर्नशिप लोगे, you will be pissed to a level जहां पे आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. सो यू हैव टू मेक श्योर जो इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर है, जैसे कि अभी या तो आपका सेमेस्टर खत्म हो गया, उसके बाद का जो 2 मंथ है इज द बेस्ट टाइम, और एल्स अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है लाइक जून, जुलाई, अगस्त इज द बेस्ट टाइम टू डू इंटर्नशिप. सो माय सजेशन वुड बी कि चूज एन इंटर्नशिप टाइम वाइजली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जहां पे आपका इंटरनल्स आ जाता है एंड फैकल्टी को भी जोश आता है पढ़ाने का. नहीं तो आई नो 90% ऑफ द फैकल्टी इनिशियल 3 मंथ्स कुछ पढ़ाते ही नहीं है. सो यू कैन चिल एट दैट टाइम, डू योर इंटर्नशिप. अगर लेक्चर मिस भी हुए तो ज्यादा कुछ सीन नहीं है, लेक्चर के बाद सीधा इंटर्नशिप जाओ क्योंकि इतने ज्यादा असाइनमेंट्स नहीं होंगे. बट इफ यू डू इट दैट एग्जाम का 1-1.5 महीना, देन इट गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क. एग्जाम के बाद का जो 3 मंथ्स होता है दैट इज अ परफेक्ट टाइम. एंड यस ऑफ कोर्स, मतलब अभी जो टाइम है जो कि अभी एग्जाम आने को और है, वो ये वाला जो 6 महीना होता है ना इज द बेस्ट टाइम. सिर्फ एग्जाम का 2 मंथ्स जो है वो आप ब्रेक ले लो, कोई भी इंटर्नशिप मत करो, एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड द परफेक्ट टाइम फॉर योर इंटर्नशिप. Last point according to me is your mental emotional health, because that's really important guys. I have seen people get 5,000, 10,000 per month, but they are frustrated because they are burdened with the amount of work they have to do in a day, which is taking a toll on their mental and emotional health, because work pressure हो गई. कोई भी आपको स्टाइपेंड देगा, आपको बर्डन करेगा वर्क के साथ. तो आपको ये भी देखना है the kind of work you're doing, is it making you grow?
मतलब कि ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा होगी, बट क्या आप सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग, सेकेंडली आर यू नेटवर्किंग इनफ, thirdly is it making you a better person personally, मतलब is it giving you confidence, your communication skills has improved, your other set of skills like editing and जो भी है, अगर आप skill set सीख रहे हो on work then it is worth it. But अगर आप सिर्फ manual job कर रहे हो then there is no point because it will not make you grow. सिर्फ पैसों के लिए आप क्या ही कर लोगे यार, 2-4 हज़ार रुपए के लिए. If you are doing a multiple edit, if you are getting a hang of a software, then yes, I would suggest it is a better job because you will be able to function peacefully. At the same time, there is no toxic environment. वो भी आपको देखना है because toxic environment कैसा कि आपको बार बार कॉल करके बॉदर कर रहे हैं, आप पे प्रेशर उतना बिल्डअप है, then it's not worth it. Obviously वर्क प्रेशर होगा, बट एट द सेम टाइम वो वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि मतलब यू नो ऑल द टाइम चिक चिक और एल्स इट्स लाइक वर्क प्रेशर, उसके बाद आपका बॉस चिल है. तो वो सब आप वाइसली डिसाइड करो, आप देखो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है. एंड इफ यू आर मेंटली एंड इमोशनली सॉर्टेड देन बैलेंस करना बहुत ईजी होता है. बट अगर ये दोनों चीजें बहुत अनोइंग है देन आई वुड सजेस्ट एनी इंटर्नशिप और वर्क और अ जॉब इज नॉट वर्थ इट. आई होप गाइज ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए प्लीज ध्यान में रखो बिकॉज दिस वे यू विल बी एबल टू बैलेंस योर लाइफ. सेकेंडली रिलेशनशिप पे कभी और बात करेंगे बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो इमोशनल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजिंग आप कैसे करना चाहिए, किन लोगों के साथ करना चाहिए एंड हाउ इट विल मेक यू ग्रो एज अ पर्सन बिकॉज आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत मैटर करता है इन योर टीन एज. Either it will make you an amazing person or it will make you a cribber. So just, you know, choose wisely. I'll help you with that also. In other video, I'll tell you in detail about, you know, your emotional relationship as well as your friend circle, how important it is और आपको वो कैसे pick and choose करना है. I hope guys this video was informative. Please write down in the comment box below and let me know how you find this video. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.